بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے روح پرواز کر چکی تھی۔ اب یہ شخص آتا ہے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو کیا اس شخص کو صحابی کہیں گے یا نہیں؟ جواب: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح نخبۃ الفکر کے اندر عبارت نقل کی ہے، اس سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صحابی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں صحابی کی تعریف میں، تعریف صحابی من ہوا، کہتے ہیں فقلت وهو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ اور پھر آگے نقل کرتے ہیں وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةُ فِي الْأَصَحِّ وَالْمُرَادُ بِاللِّقَاءِ، اصل یہاں دیکھنا، وَالْمُرَادُ بِاللِّقَاءِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُمَاشَاةِ وَوُصُولِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ وَإِن لَّمْ يُكَالِمْهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ رُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ۔ اس کے تحت اور لمبی عبارت ہے، اس کو شرح نخبۃ الفکر جو مکتبۃ البشرا کراچی کا نسخہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے 107 صفحے پر اور 108 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے اقسام الاحاد کے اندر۔ چنانچہ اب میں اس کی شرح کرتے ہوئے ترجمہ تھوڑا کر دوں، اس کے بعد جو اس کی شرح بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صحابی وہ ذات ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اسلام ہی پر وفات پائی ہو، اگرچہ درمیان میں ارتداد پیش آ گیا ہو، اور ملاقات کا مفہوم عام ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ملاقات کا مفہوم عام ہے، خواہ ساتھ بیٹھ کر ہو، ساتھ چل کر ہو، ایک دوسرے کو پا لینے سے ہو، اگرچہ گفتگو کی نوبت نہ آئی ہو، اور اس میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی آ جائے گا، خواہ خود بالواسطہ ملاقات کی تعبیر ہو یا اس کے علاوہ۔ بہرحال یہ ایک لمبا ترجمہ ہے، پوری عبارت ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب علماء نے جو صحابی کی تعریف اردو میں کی ہے وہ یہ ہے، صحابی وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ اب اس جملے سے جو ابن حجر نے نقل کیا ہے لقاء، اس کے اندر ملاقات، صحابی نے ملاقات تو کی بحالت ایمان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی وہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوئی ہے، لہذا اس آنے والے شخص پر صحابیت کا لفظ کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر کچھ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، پھر جو ہے اس کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ارتداد والی جو بحث ہے اس میں شوافع اور حنفیہ اور مالکیہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ دونوں ایک طرف ہے،
वो कहते हैं अगर कोई मुर्तद हो गया फिर इस्लाम कबूल किया, तब उसका सारा, जब तक दोबारा नहीं अल्लाह के रसूल को देखेगा उस वक्त तक फिर वो सहाबी नहीं बन सकता। और इमाम शाफी कहते हैं कि नहीं, अगर वो दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वो शख्स सहाबी हो जाएगा। ये एक बहस है, मैं इसकी तरफ खाली आपको इशारा कर दिया हूँ, इसके अंदर एक बहस है। चुनांचे अब हाफिज इब्न हजर की जो इबारत है लिक़ा, इससे क्या मुराद है, शुराह हदीस इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं। देखिए, सहाबी की तारीफ में जिक्र करदा लफ्ज़ लिक़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना, इससे उमूमी मफ़हूम मुराद है। ख़्वाह आपकी मजलिस में शिरकत की हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ चलना पाया गया हो या आपस में गुफ्तगू हुई हो या बाहमी मुबायात हुई हो, आपसे बैतो इरशाद का सिलसिला चला हो या उमूमी तरीक़े से एक दूसरे तक रसाई हुई हो, अगरचे गुफ्तगू की कोई नौबत यहाँ पर ना आई हो, इन तमाम सूरतों को लफ्ज़ लिक़ा शामिल है। इसी तरह इस लिक़ा में एक दूसरे को भी देखना शामिल है। ये जो दूसरा जुज़ है, मुहद्दिसीन ने जो इसकी तशरीह की है, शुर्राह, वो ये है कि इसी तरह इस लिक़ा में एक दूसरे को देखना भी शामिल है, गरचे वो क़स्दन एक लम्हे ही के लिए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़्वाह बिल क़स्द देखा हो या बिला क़स्द देखा हो, लिहाजा यहाँ तो सहाबी ने देखा लेकिन अल्लाह के रसूल ने आपको नहीं देखा, लिहाजा इस जुमले से ये मालूम होता है कि ये शख्स जो आने वाला है ये शख्स सहाबी नहीं होगा। और भी इसकी मुतअद्दद शुरूहात की गई है, इसलिए इसकी जो बेहतरीन शरह है वो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने शरह कारी के अंदर, उम्दतुल कारी के अंदर किया है 577 सफ़े पर। अब एक रोयत के ताल्लुक़ से जो फ़र्क बयान किया है उसको देखिए। सहाबी की तारीफ में रोयत के बजाय मुलाकात की ताबीर ज़्यादा बेहतर उलमा ने लिखी है। क्यों? इसलिए कि बकौल बाज़ अगर सहाबी की तारीफ में मुलाकात के बजाय रोयत की ताबीर इख्तियार करते हैं तो फिर ये सूरत पेश आती है, अस्सहाबी मन रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तारीफ से यानी वो सहाबी वो है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रोयत की अगर कैद लगाते हैं तो फिर बाज़ वो सहाबा जो नाबीना थे वो इस शर्फ सहाबियत से महरूम हो जाएंगे। चुनांचे इसकी तारीफ से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जैसे नाबीना सहाबी खारिज हो जाएंगे। हालांकि उम्मत का इस पर इजमा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला ये सहाबी रसूल है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल इत्तिफाक सहाबी है। लिहाजा रोयत के बजाय मुलाकात की ताबीर ज़्यादा बेहतर है। और अब जब मुलाकात की ताबीर यहाँ बयान की गई तो फिर ये आने वाला जो शख्स है इसकी मुलाकात अल्लाह के रसूल से हयात में नहीं, लिहाजा ये शख्स जो है सहाबी नहीं कहलाएगा। इसकी तफसील जो है उम्दतुन नज़र के अंदर भी बयान की गई है। उसकी शुरुआत है 317 सफ़े से लेकर 319 सफ़े तक वहाँ देखी जा सकती है। इसी तरीके से मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने भी जो है
सहाबी की तारीफ़ की है, सहाबी वो शख्स है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहालत ईमान मुलाकात की हो। तो ये शख्स बहालत ईमान तो मिला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे और इस्लाम ही पर उनका ख़ात्मा हुआ हो। अगर मुलाकात नबवी के बाद नऊज़ बिल्लाह मुर्तद होकर दोबारा मुसलमान हो जाए तो फिर मैंने वही हुक्म बतलाया जो इससे पहले इख्तिलाफ अइम्मा बतलाया। चुनांचे सहाबी की तारीफ में लिक़ा मुलाकात का जो लफ्ज़ है इसलिए इख्तियार किया गया है कि तारीफ़ नाबीना सहाबी को भी शामिल हो जाए, क्योंकि मुलाकात के लिए देखना शर्त नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने मन रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारीफ़ की है वो मुनासिब तारीफ़ नहीं हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया। लिहाजा मुलाकात करना आम है, ख़ास साथ बैठना हुआ हो या चलना या एक दूसरे के पास जाना, अगरचे बातचीत ना हुई हो। लिहाजा मज़कूरा बाला सूरत में ये शख्स जो आने वाला है ये सहाबी नहीं होगा। यही मैं अपने इल्म फ़हम के एतबार से समझता हूँ। बाकी अगर आपको ना समझ में आए तो दीगर बड़े बड़े उलमा हैं, आप उनसे राब्ता कर लीजिए। मुमकिन है कि वो कोई और तौजीह बयान करे। मेरी नाक़िस अक़ल और नाक़िस फ़हम के अंदर तो यही है कि वो शख्स सहाबी नहीं होगा। चुनांचे इसको जो है तुहफ़तुद्दुरर जो मुफ्ती सईद साहब की तुहफ़तुद्दुरर शरह नुख़बतुल फ़िक्र है उसके अंदर भी इसको नकल किया है, वहाँ देखा जा सकता है। सफ़ा नंबर 49 और 50 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ देख सकते हैं।